Hello students, in the previous class we discussed the important questions from linear equations in two variables. Today we are back with part 2, which is extremely important for the board examination as these type of questions are likely to appear in the exam. Now I will discuss the first question, which is find the values of k for which the system of equations kx plus 2y equal to 3 and 3x plus 6y equal to 10 has a unique solution. एंड हम लोग जानते हैं कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है ना, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So the above equation can be written as, ऊपर के इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं kx plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x plus 6y minus 10 equal to 0. यहाँ पर हम लोग क्या किए ना, राइट हैंड साइड में 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और राइट हैंड साइड में 10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए. These are the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, so a1 is equal to k, a2 is equal to 3, b1 is equal to 2 and b2 is equal to 6. Similarly, c1 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 10. Now condition for unique solution. अब लोग जानते हो कि यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है ना, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ओके, सो यहाँ पर हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठाएंगे तो a1 इज इक्वल टू k है और a2 इज इक्वल टू आपका 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 6. और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि k इज नॉट इक्वल टू 2 into 3 divided by 6. सो 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया 1. और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k is not equal to 1. Okay, it means that hence the given system of equation will have a unique solution for all real values other than 1. Okay, now we will start the second question. Second question यहाँ पर है कि find the value of k. K is unknown quantity which the pair of linear equation have infinitely many solution. तो infinitely many solution के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2. यहाँ पर देखिए infinitely many solution के लिए होता है कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1 का वैल्यू क्या होगा 2, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 वो हो गया a1. फिर आपका b1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y
दैट इज 3 एंड C1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज -7। सिमिलरली A2 इन इक्वेशन 2 में A2 हो गया k + 1, B2 यहाँ पर हो जाएगा 2k - 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, और C2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है -4k + 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Now substituting the value of A1 B1, A2 B2 and C1 C2, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि A1 is equal to 2 है, A2 is equal to k + 1 है। ओके, सिमिलरली B1 is equal to 3 और B2 is equal to 2k - 1 है, इक्वल टू C1 -7, C2 is equal to -4k + 1। ये माइनस माइनस हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/4k + 1। ओके, चूंकि यहाँ पर 4k + 1 है तो यहाँ पर भी आपका k होगा 4k + 1। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2/k + 1 is equal to 3/2k - 1 एंड फिर हम लोग लिखेंगे 3/2k - 1 इक्वल टू 7/4k + 1। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2k - 1 is equal to 3 × k + 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 4k - 2 is equal to 3k + 3। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, k is equal to 5। If you transpose -2 on right hand side then it will be 3 + 2 is equal to 5। सिमिलरली इधर हम लोग करेंगे कि 3 × 4k + 1 इक्वल टू 7 × 2k - 1। यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12k + 3 is equal to 14k - 7। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 + 3 10 हो जाएगा, 14 - 12 is equal to 2k। ओके, और k is equal to 5। In both the cases you will get the unknown quantity that is k is equal to 5. This is the final answer. Okay, the third question is find the values of k for which the system of equation kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3. So the given equation can be written as, इसको हम लोग क्या करेंगे, kx minus y, ओके, 2 जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, kx minus y minus 2 is equal to 0 और 6x minus 2y minus 3 equal to 0। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया होगा कि फॉर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन। ओके, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 by a2 is equal to b1 by
B2 is not equal to C1 by C2. Okay, this is the condition for no solution. अब हम लोग क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का वैल्यू बैठाएंगे। तो A1 इज इक्वल टू के होगा कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, फिर A2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा दूसरे में इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, फिर यहाँ पर क्या होगा B1 माइनस 1 हो जाएगा, B1 माइनस 1, B2 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो C1 हो गया आपका -2 और C2 हो गया -3। तो ये दोनों को यदि हम लोग कैंसिल कर देते हैं माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 नॉट इक्वल टू 2/3। सो देयरफॉर k बाई 6, ओके, k बाई 6 इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2/3। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो k इज इक्वल टू 6/2, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर फिर दूसरे के लिए हो जाएगा कि k बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 2/3 और k इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 6/3। तो 3 को कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। ओके, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution when k is equal to 3। यदि k का वैल्यू 3 होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बहुत जरूरी है कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज कि int angle ABC, angle C is equal to thrice angle B is equal to twice angle A plus B. Then find the angles, means find angle A, B and C. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि लेट एंगल A is equal to X and एंगल B इज इक्वल टू हमने Y मान लिया। ये दोनों एंगल हम लोग मान लिए A और B। तो एंगल A इज इक्वल टू X, एंगल B इज इक्वल टू Y। सो एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B दिया हुआ है, तो थ्राइस एंगल B और B इज इक्वल टू आपका Y हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा कि एंगल C इज इक्वल टू 3Y, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग फिर ले लेंगे कि एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एक्स है, एंगल बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया वाई, और एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी 3y। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी हो गया 180। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, 180। बट बिफोर दैट कि एंगल C, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस अगेन
एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई। और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 3y, तो c के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3y लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। और यहाँ पर 3y माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग y ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया इक्वेशन 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह पर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 2x सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपका क्या है कि x प्लस 4y और y इज इक्वल टू 2x, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 180 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर हो जाएगा 9x, ओके, इज इक्वल टू 180। और x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 20 आ गया। और हम लोग माने हैं कि एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। ओके, एंगल B इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखें इक्वेशन 3 में, y इक्वेशन 3 में देखें 2x, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C इज इक्वल टू है आपका 3y। ओके, एंड y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इन प्लेस ऑफ y जो है हम लोग 40 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। हेंस एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर हम लोग ये तीनों का सम लेते हैं तो 120 प्लस 40 160 और 160 plus 20 is equal to 180. That means sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ये तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। ओके, वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर फिर आएंगे। ओके एंड थैंक यू।